morning, students. In our previous lecture, we have discussed about the money creation by the commercial banks, okay, and the Indian banking system. Furthermore, we'll be discussing about the other functions of banks, okay, and some topics of this chapter have been deleted by CBSE this year, okay. One of the important function of the RBI, okay, that is the credit control, okay, by two techniques, quantitative as well as qualitative, okay. That function means that topic has been deleted, okay. Credit uh, credit control by RBI, okay. We will not discuss in this chapter. So in our previous lecture, we have discussed about the credit creation. Okay, that is denoted by, you can say, money creation or credit creation, because the money supply by the commercial banks, okay, money supply by the commercial banks is created through credit creation. Okay, the important part is commercial banks are also considered as the money suppliers. Okay, because the commercial banks create credit, okay. How they create credit, we have discussed in our previous lecture, okay. So the process of credit creation, okay, which is denoted by K, okay. K is used for credit creation, okay, and K is equals to 1 upon RR, that is reserve requirement, okay. K is equal to 1 upon RR, reserve requirement, and this reserve requirement is discussed as, means the components of reserve requirement, that means what types of reserves are kept by commercial banks, okay, the required reserves, clear. So there are two reserves in this required reserve system. One is CRR, okay, cash reserve ratio, and the other one is VCR, vault cash reserve, okay. So RR, reserve requirement, have two components. We had already discussed in our previous lecture that RR has two components, CRR and VCR, okay. So CRR stands for cash reserve ratio and VCR stands for vault cash reserve, okay. CRR is kept by commercial banks with the RBI, and VCR is kept by the commercial banks with themselves, okay. ये दोनों ही कैश रिजर्व्स हैं, ओके, जो कि कमर्शियल बैंक्स रखते हैं, ठीक है। एक कैश रिजर्व ये आरबीआई के पास रखते हैं, ठीक है, कैश की फॉर्म में, आउट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स और ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स, ओके, commercial banks keep a certain proportion of their total deposits in the form of cash with RBI, that is known as CRR, cash reserve ratio, okay. That and this is all determined also by the RBI, okay. RBI ही इनको determine करता है इस proportion को, and the next proportion is VCR, vault cash reserve. Other than the CRR, another reserve is kept in the form of cash, hard cash you can say, okay. That is kept by commercial banks on their own discretion, and it is kept by the commercial banks with themselves, okay. It is not necessarily to keep by the commercial banks, means no certain legal impositions are made by the RBI on the commercial banks that you have to keep this reserves with yourself, okay. ऐसी कोई इम्पोजिशन नहीं है, इम्पोज नहीं करता है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के ऊपर कुछ कंडीशंस कि आपको ये रिजर्व रखना ही रखना है, ठीक है। बट बैंक्स रखते क्यों हैं, बिकॉज चांसेस आर देयर कि जो लोन या क्रेडिट दिया गया है, ठीक है, उसमें या उसकी रिकवरी में डिले हो सकती है, ओके, एंड द डिमांड डिपॉजिट्स व्हिच आर मेड बाय द जनरल पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स, ओके, that has to be repaid by the commercial banks any time, okay, वो कभी भी वापस करना पड़ेगा, okay. So if the loans are not recovered on time, so what would the banks do whenever the customers or the clients will call for their demand deposits, okay. So that's why the banks, the commercial banks, has to keep or keeps a certain proportion, okay, out of their total deposits with themselves in the form of hard cash, okay. मतलब
ऐसी कोई लाइक सर्टेन गाइडलाइंस नहीं है आरबीआई की तरफ से, बट फिर भी ऑन द जनरल एक्सपीरियंस बैंक्स एक सर्टेन प्रोपोर्शन कैश की फॉर्म में अपने पास भी रखते हैं टोटल डिपॉजिट्स में से, सीआरआर के अलावा, अपार्ट फ्रॉम सीआरआर। ओके, एक कैश की फॉर्म में एक रिजर्व वो भी अपने पास रखते हैं। ओके, अब इसका परसेंटेज या प्रोपोर्शन क्या होगा मीन्स ये सर्टेन नहीं है, बिकॉज सेंट्रल बैंक डिटरमाइन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये बैंक टू बैंक वेरी करेगा। ओके, तो वीसीआर का एक सर्टेन प्रोपोर्शन या कोई परसेंटेज हमारे पास नहीं है, बिकॉज ये आरबीआई या सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट डिटरमाइन नहीं करती है। ओके, सो बैंक्स अपनी मर्जी से रखते हैं, ठीक है। तो बैंक टू बैंक वीसीआर वेरी करता है। ओके, ड्यू टू दिस वेरिएशन, clear, and sometimes banks are keeping VCR, and sometimes like some banks are not keeping, maybe chances are there or conditions may be like some commercial banks are not keeping VCR. Okay, so that's why, because it is highly volatile, clear, तो एक certain authority banks को monitor नहीं कर रही है regarding VCR. That's why it is highly volatile and vary from bank to bank. So it is not included in RR while calculating the value of K, or while calculating credit creation. We are not taking into consideration, or we do not take into consideration the VCR component. Okay, क्लियर। हालांकि रिक्वायर्ड रिजर्व में हम डिफाइन करते हैं दो पार्ट्स हैं, सीआरआर एंड वीसीआर, बट व्हाइल कैलकुलेटिंग क्रेडिट क्रिएशन वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द वीसीआर कंपोनेंट ऑफ द आरआर। ओके, जो वॉल्ट कैश रिजर्व है, ठीक है, जो बैंक्स अपने पास रखते हैं कैश की फॉर्म में, ठीक है, आउट ऑफ देयर टोटल डिपॉजिट्स, it is not considered or not taken into consideration while calculating the value of K, or while calculating credit creation. Okay, reason being it is highly volatile. Okay, बैंक टू बैंक वेरी करता है। Okay, that's the only reason. Clear. Apart from it, the next component, that is cash deposit ratio. Okay, very important concept, cash deposit ratio, that is written as CDR or widely known as CDR. Okay, that is cash deposit ratio. Okay, cash deposit ratio, so R represents ratio. Okay, that means ये एक रेशियो है, ठीक है, लेकिन किस चीज का रेशियो है, that is the ratio of deposits. Okay, it is the cash deposit ratio. That means it is very simple, or it is a general phenomena, that out of their total income or of their income, the general public or the people keep some money out of their income with themselves or in their hands, and out of the income or remaining part of the income, after keeping with themselves the remaining part, which is known as savings sometimes. Okay, बिकॉज सेविंग्स जो हाथ में रखा है कैश इन हैंड, वो भी सेविंग्स का ही पार्ट है। ओके, सो हम उसको ये नहीं कह सकते कि जो डिपॉजिट किया है वही सेविंग्स है, ठीक है, जो हमने अपने पास रखा है, लाइक the cash which is in customer's hand or in general public's hand. Okay, that is also the part of savings. Okay, so we are not saying, or I'm not saying that the savings which is deposit, okay, which is deposited into bank. Okay, so the point is, out of the total income, okay, after spending some money, or after meeting out their expenditure or expenses, ठीक है, people are left with some savings. लोग कुछ सेविंग्स के लोगों के पास कुछ सेविंग्स बच जाती है। ओके, आफ्टर मीटिंग आउट देयर एक्सपेंसेस, पीपल आर लेफ्ट विद सम सेविंग्स। ओके, आउट ऑफ दैट सेविंग some amount is kept by themselves in their hands. Okay, कुछ पैसा वो अपने पास रख लेते हैं, and some is deposited into banks. Okay, in various forms, you can say in demand deposits or in term deposits. Okay, sorry, clear. So two components of savings are there. One is the part of money which is kept by themselves in their hands, and the other one is the money which is deposited by them in banks. Okay,
So the deposited amount, okay, the deposited amount, clear? So we are talking about the cash deposit, okay? So that is the ratio of deposit to, किसके बीच में ratio है? To the cash or the money held by them, okay? Clear? So it is the ratio of cash or the money held by the general public or people, and the deposits made by them with the commercial banks. Okay, so it is the ratio of the money or the cash held by them in their hands and the money deposited by them in banks. Okay, so currency held by the or the money held by the general public, okay, that is known as CU, okay, divided by CD. Currency held by the people, और कैश इन हैंड भी कह सकते हैं जनरल टर्म्स में, अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं, ठीक है? तो कैश इन हैंड भी अगर हम इसको बोलें तो ठीक होगा ये, ठीक है, गलत नहीं है. सो कैश इन हैंड डिवाइडेड बाय cash in banks or the deposits made by the people in banks, okay, in their respective accounts. Clear? So this is the ratio, okay, this ratio is known as cash deposit ratio. Clear? So the relationship between cash in hand and cash held by the people and the cash deposited in the banks, okay, there is a close relationship. See, higher the CU, that means the cash held, clear, higher the cash held, higher will be the CDR, okay, cash deposit ratio ज़्यादा होंगे. क्लियर? या फिर हम इन दोनों के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करें, अगर कैश इन हैंड ज़्यादा है तो डिपॉजिट्स क्या होंगी? ऑब्वियसली कम होंगी. दैट मीन्स वो लोग बैंक में कम जमा करा पाएंगे, क्योंकि अपनी सेविंग्स का, इनकम का नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनकम के दो पार्ट्स हैं, उसने अपनी इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक तो खर्च कर दिया है और दूसरा बचा लिया है, ठीक है? तो जो बचाया होगा वो ही कैश इन हैंड एंड डिपॉजिटेड कंसिडर किया जाएगा. ओके, so it is very clear that we are talking about the savings, not the whole income. हम पूरी income की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? We are only talking about the savings. Clear? So explanation में हमें simply दिखाना है कि CDR is cash deposit ratio. That means it is the ratio of cash in hand and the cash deposited by the general public. Okay, और वो जो कैश इन हैंड एंड कैश डिपॉजिटेड है वो किसका पार्ट है? वो सेविंग्स का पार्ट है, ठीक है? इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं कि जो अमाउंट स्पेंड कर दिए जिसको हम कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है, एंड द रिमेनिंग अमाउंट और द लेफ्ट ओवर अमाउंट इज नोन एज सेविंग्स. ओके, वेरी सिंपल. उस सेविंग्स में से ही हम कुछ अपने पास बचा के रख लिया है, कुछ बैंक में जमा करा दिया गया. ओके, सो उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है. क्लियर? अगर ज़्यादा अपने पास रखा है तो बैंक में कम जमा करा पाएगा एक पर्सन. ओके, क्लियर? So we were talking about the cash in hand, okay, that is CU. So just we have as we have discussed that more cash in hand is there. If more cash in hand is there, so less will be there, less amount will be there with the commercial banks. That means the cash deposits or the demand deposits with the commercial banks will be affected, highly affected you can say. Okay, क्योंकि ज़्यादा cash in hand है, ठीक है? If the CU, that is known as cash in hand. Okay, we are talking about CU, that is cash in hand. Okay, if the more or the the more proportion of the savings are kept by the people with themselves. Okay, अगर अपनी सेविंग्स का ज़्यादा हिस्सा अपने पास रख लिया गया है, ठीक है, तो ऑब्वियसली बैंक्स में कम डिपॉजिट कराया गया होगा. क्लियर? वेरी क्लियर. अगर सेविंग्स का ज़्यादा प्रोपोर्शन अपने पास रख लिया है तो बैंक्स में बहुत कम डिपॉजिट कराया गया होगा, डिमांड डिपॉजिट या जिसको हमने कैश डिपॉजिट के फॉर्म में पढ़ा है. तो डिपॉजिट सिंपली अफेक्ट तो डिपॉजिट्स होंगी, ओके, कमर्शियल बैंक्स की, ठीक है, क्योंकि उन्हीं डिपॉजिट जो हमने लास्ट में क्रेडिट क्रिएशन में पढ़ा था, ठीक है, दैट मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक्स इज मेड विद द हेल्प ऑफ
डिपॉजिट्स, क्योंकि टोटल डिपॉजिट्स में से ही वो लोन आउट करते थे फंड्स को, ठीक है। सो इफ द डिपॉजिट्स आर लेस with the banks or the commercial banks, ultimately it will affect the money supply or the credit creation, okay। ये मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन को अफेक्ट करेगा अगर उनके पास डिपॉजिट्स कम होंगे तो, क्लियर। क्योंकि लोगों ने अपने पास, इफ sometimes it happens in the economy that people tends to held more cash with themselves, okay। कई बार ऐसा होता है इकोनॉमी में या इकोनॉमी की कुछ कंडीशंस की वजह से that people tend to held more amount or more money with themselves, okay। Reason being, like if the interest rates are very low which are being offered by the commercial banks, okay, on the demand deposits generally, mainly अगर हम डिमांड डिपॉजिट्स की बात करें तो हालांकि उनका जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी लो होता है दूसरे डिपॉजिट्स के मुकाबले, लाइक टर्म डिपॉजिट्स के मुकाबले, ठीक है। If the situations are like the interest rate or the rates of interest are very low on demand deposits, okay, so people would like to held cash with themselves because sometimes it according to the human tendency, because people also do want to have liquidity with themselves, clear। ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी होती है कि अपने पास वो कुछ लिक्विडिटी रखेंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ वहाँ पे ऐड हो गई है कि बैंक्स आर ऑफरिंग लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिमांड डिपॉजिट्स, क्लियर। सो एक तो ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी टू हैव द लिक्विडिटी विद themselves। सेकेंड वन, अगर वो डिपॉजिट कराते भी हैं फॉर एग्जांपल, सो बैंक्स आर पेइंग वेरी लेस इंटरेस्ट on their deposits, clear। So sometimes it may happen in the economy that people would like to have more cash with themselves, क्योंकि ना तो उनको अच्छा इंटरेस्ट बैंक्स में मिल रहा है, ठीक है, और एक उनकी टेंडेंसी है कि लिक्विडिटी हमारे पास बनी रहे, ठीक है। एंड some other conditions may also act with these two conditions, for example insecurity, you can say, okay। Sometimes people may get confused that their means security or safety of money may be compromised or might be compromised by the bank. Sometimes it may happen, okay। I'm not saying that every time it happens, but more or less the chances can be there, okay। So due to insecurity, sometimes people would like to have or would like to put less amount in their demand deposits, okay। मे बी टर्म डिपॉजिट में रख दिया है, एफडी, या फिर समटाइम्स इन्वेस्ट कर दिया है किसी दूसरी स्कीम में। सो बट डिमांड डिपॉजिट्स के केस में इनसिक्योरिटी, लाइक बैंक फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है। बैंक्स एंड सम बैंक्स आर गोइंग ऑन द पाथ ऑफ लाइक bankruptcy, okay, or some are at the threshold of bankruptcy, okay, and like some are going into liquidity, or so you can say liquidation, not liquidity, sorry, liquidation, okay। Some banks are going into liquidation, some are at the threshold of bankruptcy or insolvency, and increasing bank frauds may lead people to put lower cash in their demand deposits, okay। So many or multiple factors may cause low or less demand deposits with the commercial banks, okay। So people would like to hold more cash with themselves, okay। So the condition was कि अगर लोग अपने पास ज़्यादा पैसा रखते हैं, कैश इन हैंड ज़्यादा होता है, तो जो बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स हैं, डिमांड डिपॉजिट्स, वो कम हो जाएंगे। अल्टीमेटली अगर डिमांड डिपॉजिट्स कम हो जाएंगी तो क्या होगा, जो क्रेडिट क्रिएशन या मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक्स कर रहे थे, ठीक है, लोन्स की फॉर्म में या थ्रू लोन्स, यू कैन से, okay, whatever the money creation or credit creation which was performed by the commercial banks through loan function, okay, that will contract, okay, that will be contracted ultimately if CU is more, or if the people like general public tendency to hold more cash increases, okay। अगर लोगों की जो टेंडेंसी है ज़्यादा कैश होल्ड करने की, अगर वो इंक्रीज होती है, तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में जो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन है बाय कमर्शियल बैंक्स,
that will reduce, okay, to its lowest, that may reduce to its lowest, okay। जैसे कुछ फैक्टर्स हमने देखे, एक तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि लिक्विडिटी उनके पास रहे, सेकंड low interest if the banks are offering on demand deposits, so people would like to hold more cash with themselves instead of depositing with the banks, and the third one is insecurity like bank frauds and due to some other reasons, bankruptcy or insolvency of banks, okay। इन वजहों से भी लोग जो है अपने पास अपना पैसा रखना चाहेंगे, रादर वो इन्वेस्ट कर देंगे दूसरी स्कीम्स में, बट डिमांड डिपॉजिट्स में या बैंक में नहीं करेंगे। ऐसा केस हो सकते हैं और होते भी हैं जनरली, ठीक है। सो अल्टीमेटली सीयू इंक्रीज हो गया, ठीक है। इफ सीयू इंक्रीज होता है, सो सीयू इंक्रीज हो गया इफ द कैश हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक और कैश इन हैंड इज हाई, लेस मनी सप्लाई, ओके। जो मनी सप्लाई कमर्शियल बैंक्स कर रहे थे, ठीक है, जो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स कर रहे थे, वो रिड्यूस हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा, क्लियर। इफ द कैश इन हैंड इज लो, ओके, अगर ऐसा कब होगा, हाई कब हुआ था, जब कमर्शियल बैंक्स वर ऑफरिंग लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ओके। इन कंट्रास्ट, if they started offering high rates of interest on demand deposits, people would attract, or people would tend to deposit more cash with the banks, okay, instead of holding with themselves, okay। अगर कमर्शियल बैंक ज़्यादा या हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करेंगे तो ऑब्वियसली लोग जो है बैंक्स में डिपॉजिट करेंगे अपनी सेविंग्स को, इंस्टेड ऑफ हैविंग और लाइक होल्डिंग विद देमसेल्व्स, अपने पास रखने की बजाय। और अगर ऐसा होता है दैट मीन्स सीयू लो है, ओके। सीयू मीन्स कैश इन हैंड इफ इट इज लो, सो मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन प्रैक्टिसेस विल इम्प्रूव, ओके। ज़्यादा मनी क्रिएट होगा या ज़्यादा क्रेडिट क्रिएट होगा, ओके। सो दो कंडीशंस हो सकती हैं सीयू के केस में, क्लियर। नाउ गवर्नमेंट ऑलवेज वांट्स, ओके, गवर्नमेंट हमेशा चाहती है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है बेटर हो, ठीक है, या फिर जो सर्कुलेशन है, मनी सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। बिकॉज इफ सीयू, अगर सीयू ज़्यादा होगा तो मनी सर्कुलेशन रुक जाएगा या फिर कुछ हद तक अफेक्ट होगा, ठीक है। मनी जो मनी सर्कुलेशन है, ये सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी वो अफेक्ट होगा अगर सीयू ज़्यादा है, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू इंक्रीज the demand deposits or always try to reduce CU, कैश इन हैंड की जो टेंडेंसी है, हालांकि खत्म तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ठीक है, लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकती, बट ट्राई करती है टू रिड्यूस द CU, कैश इन हैंड की जो प्रैक्टिसेस है उनको कम करती है। फॉर एग्जांपल एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमारे पास है, लाइक जनधन जो योजना है, ठीक है। थ्रू दिस द गवर्नमेंट ट्राई टू increase the savings habit of the people, or you can say government tries to mobilize the people's saving or general public savings towards bank, okay। mobilize करने का कोशिश किया है कि जो गरीब लोगों के हैं उनके लिए अकाउंट ओपन किया, ठीक है। so and the government promised them to send or deposit some amount on frequent interval in their accounts, okay। कि गवर्नमेंट गरीब लोगों के खाते में कुछ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स के ऊपर कुछ एक सर्टेन अमाउंट डिपॉजिट करेगी, ठीक है। अब इससे क्या होगा, वो लोग भी, ठीक है, भाई गवर्नमेंट तो कर ही रही है, अब उनका अकाउंट ओपन हो गया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फैमिलीज या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पहले अकाउंट नहीं था ड्यू टू सम सर्टेन रीजन, या तो उनकी इनकम इतनी सफिशिएंट नहीं थी, या फिर ड्यू टू सम डॉक्यूमेंटेशन, ओके, या फिर लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू बैंक्स, रीज़न कुछ भी हो सकता है कि उनके आसपास बैंक फैसिलिटी नहीं थी, या उनकी इनकम ही इतनी नहीं है, ठीक है, कि होती है सेविंग्स, ठीक है, लेकिन बहुत नॉमिनल सी सेविंग है जिनके लिए वो इतनी दूर जाके बैंक अकाउंट ओपन कराएं, फिर रेगुलरली उन सेविंग्स को डिपॉजिट कराने जाए, ठीक है। तो इतने एफर्ट्स को दे डोंट वांट टू टेक सच एफर्ट्स, ओके। सो अब गवर्नमेंट ने ओपन करा दिया है तो उन सेविंग्स को भी वो ऑब्वियसली डिपॉजिट करेंगे, तो वो जो स्मॉल सेविंग्स हैं जो उनके हाथों में पड़ी हुई थी, ओके, सो गवर्नमेंट ट्राई टू मोबिलाइज बाय ओपनिंग सच अकाउंट, तो गवर्नमेंट ने उनको भी मोबिलाइज करने का, लाइक वो छोटी छोटी अमाउंट बहुत सारे लोगों की मिलके तो एक कलेक्टिव अमाउंट बहुत बड़ी बन जाएगी ना, तो गवर्नमेंट ट्राई टू
mobilize such small savings of general public, okay, through such scheme. Clear? Okay, so ये कुछ पार्ट्स थे जो हम क्रेडिट क्रिएशन में डिस्कस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट्स ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर, किस तरीके से इनकी वर्किंग होती है, ठीक है, क्या ये करते हैं, अगर इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ठीक है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, सीआरआर और एसएलआर का मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर. सो एज वी डिस्कस दैट RR, okay, in credit creation, K, okay, credit creation which is denoted by K is equals to 1 upon RR, okay, and RR includes CRR, okay. So we know that CRR has a direct impact on the credit creation or money supply because it is a part of required reserve, okay, and credit creation is the reciprocal of required reserve, okay. कितना मनी क्रिएट किया जाएगा या कितना लोन बैंक ग्रांट कर सकता है एक कमर्शियल बैंक, ओके, दैट डिपेंड्स अपॉन द सीआरआर, ओके, कितना टाइम्स वो मनी या क्रेडिट क्रिएट कर पाएगा, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसके रिक्वायर्ड रिजर्व्स में, ओके. एंड एज वी नो दैट रिक्वायर्ड रिजर्व्स इंक्लूड सीआरआर, ओके, मींस सीआरआर ही रिक्वायर्ड रिजर्व का पार्ट है, बीसीआर तो हम लेके नहीं चलते हैं, लास्ट हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, ओके. So basically we can say CRR has a direct impact on the credit creation, clear, because reciprocal relationship इन दोनों के बीच में, clear. If CRR is high, अगर CRR की rate increase होती है, okay, for example if CRR is 4%, okay, if CRR is 4%, so it will be 1 upon 4, okay, if CRR is 4%, it will be 1 upon 4. 4%, okay, so it will be near about 25, and if the value rate of CRR increases to 5%, it will be 1 upon 5 is equals to 20, okay, 20% जो है हम मनी क्रिएट कर पाएंगे टोटल डिपॉजिट्स का, एंड यहाँ पे 25% हम मनी क्रिएट कर पाए, क्रेडिट क्रिएट कर पाए डिपॉजिट्स का, ओके. परसेंटेज निकाल रहे हैं, ठीक है, दैट्स वाई हम यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 25 आएगा, यहाँ पे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आएगा, ठीक है. लाइक इनको जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, देन परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके. सो 100 अपॉन 4 तो 25, लाइक डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 4, ठीक है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1 को तो पॉइंट में आएगा, देन मल्टीप्लाई, बिकॉज 100 से हम परसेंटेज हमें कैलकुलेट करनी है, सो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो इट विल काउंट अप टू 25 और इट विल बिकम 25, ओके. एंड सेम इज द केस विद दिस. सो बेसिकली वी कैन से दैट if RR increases, if RR increases, required reserves or cash reserve ratio increases 4 to 5, ठीक है, एग्जाम्पल था. बेसिकली अगर इंक्रीज होता है तो हम क्या देख सकते हैं कि जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है, ठीक है, कि कितना टाइम्स, कितना गुना जो है हम क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, वो के की वैल्यू रिड्यूस हो जाती है अगर सीआरआर इंक्रीज होता है. जैसे 4 to 5 हो गया, 4% to 5% हो गया सीआरआर की रेट, ठीक है, तो हमारा के की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो गई, दैट मीन्स क्रेडिट मल्टीप्लायर रिड्यूस हो गया, तो हम कम क्रेडिट या कम लोन जनरेट कर पाएंगे, या बैंक कम लोन जनरेट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि रिजर्व के रूप में उनको कैश ज़्यादा रखना है आरबीआई के पास, ओके. सो ये दो केसेस हैं. अगर सीआरआर हाई है तो जो मनी सप्लाई है, जो कि कमर्शियल बैंक क्रेडिट के थ्रू या लोन्स के थ्रू सप्लाई करते हैं, ठीक है, सो अगर सीआरआर की रेट इंक्रीज हो जाती है तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर सीआरआर की रेट रिड्यूस होती है, ठीक है, अगर आरबीआई, क्योंकि हमें पता है सीआरआर जो है आरबीआई एक्सरसाइज करता है, ठीक है, मनी सप्लाई को ही कंट्रोल करने के लिए उनको एक्सरसाइज करता है ये. सो अगर सीआरआर लो है तो मनी या हाई मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज हो जाएगी. नेक्स्ट वन इज एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिक्वायर्ड रिजर्व, ये रिक्वायर्ड रिजर्व का कंपोनेंट नहीं है, बट स्टिल इट अफेक्ट्स द मनी सप्लाई और क्रेडिट क्रिएशन, ओके. मनी सप्लाई को अफेक्ट करता है जबकि आरआर का पार्ट भी नहीं है. कैसे?
स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बताता है कि बैंक्स को अपनी टोटल डिपॉजिट्स का एक सर्टेन प्रोपोर्शन लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल गोल्ड है, ठीक है, एंड सर्टेन बॉन्ड्स है लाइक ट्रेजरी बिल्स है एंड अदर जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की फॉर्म में, जो BR एंड BP जो हम पढ़ते हैं अकाउंट्स में, ठीक है, सो उनकी फॉर्म में बिल्स या बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, ठीक है, इनकी फॉर्म में यू कैन से पेपर क्लेम्स, ठीक है, पेपर क्लेम्स की फॉर्म में उन्हें अपने पास डिपॉजिट रखना पड़ता है, ठीक है, लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में। ओके, ये कैश की फॉर्म में RBI के पास रखेगा, ठीक है, CRR RBI के पास रखा जाता है कैश की फॉर्म में, जबकि जो SLR है इट इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स। ओके, जो गोल्ड है या फिर जो पेपर क्लेम्स हैं, ठीक है, उनकी फॉर्म में बैंक्स अपने पास रखते हैं, RBI के पास नहीं रखा जाता है, अपने पास रखते हैं, ठीक है। तो टोटल डिपॉजिट्स का सर्टेन प्रोपोर्शन लिक्विड एसेट्स के रूप में अपने पास रखा है, तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, एंड यू कैन से बैंक्स के पास लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई है, ठीक है, तो उनकी डिपेंडेंसी RBI के ऊपर कम हो गई है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब अगर SLR इंक्रीज होता है, जो SLR की जो रेट है अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, दैट मीन्स बैंक्स के पास लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, रिजर्व में बैंक्स के पास रिजर्व की फॉर्म में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, लिक्विड एसेट्स रिजर्व में रख रहे हैं तो लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, दैट मीन्स बैंक्स के पास लिक्विडिटी इंक्रीज हो रही है, तो मार्केट में तो लिक्विडिटी स्क्वीज हुई होगी ना, क्योंकि किसी एक के पास बढ़ती है लिक्विडिटी, दूसरे के पास कम होती है ऑटोमेटिकली, क्योंकि इसने होल्ड करके रखा है, मार्केट में फ्लो नहीं कराया है, ठीक है, रिजर्व रखा हुआ है। तो बैंक्स की लिक्विडिटी इंक्रीज हुई तो मार्केट की लिक्विडिटी कम हो गई होगी, ठीक है, तो ऑब्वियसली मनी सप्लाई कम हुई है अगर SLR इंक्रीज होता है, तो फिर मार्केट में फ्लो नहीं हो रहा है मनी, बैंक ने अपने पास होल्ड करके रखा है लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में, वो कन्वर्ट नहीं करा रहा है उनको, ठीक है, करा सकता है लेकिन करा नहीं रहा है, ठीक है, तो लिक्विडिटी यहाँ पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है, डिपॉजिटेड है। एंड उल्टा है, अगर SLR की रेट लो हो जाती है तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, दैट मीन्स दोनों ही CRR और SLR दोनों ही सेम वे में काम करते हैं, ठीक है। दो RR का पार्ट नहीं है SLR, बट दोनों ही कंपोनेंट्स रिजर्व है, मिनिमम रिजर्व जो सिस्टम के अंडर आते हैं, ठीक है, सॉरी लीगल रिजर्व के अंडर जो आते हैं, ठीक है, वो CRR एंड SLR है, ठीक है। अब बात आती है लीगल रिजर्व क्या है, ठीक है, एक टर्म है LRR, लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। सो लीगल रिजर्व रेशियो को हम बहुत ही कॉमन सी टर्म में बेसिकली अगर डिफाइन करें तो वो रिजर्व सिस्टम है जो कि RBI या फिर यू कैन से गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है, अपने बैंकिंग सिस्टम को बैलेंस करने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। सो लीगल रिजर्व सिस्टम इज अ mechanism which is maintained or created or fixed by either the government or any authority of the government in order to stabilize its banking system। ओके, अपने बैंकिंग सिस्टम को स्टेबलाइज करने के लिए सेंट्रल बैंक, जनरली सेंट्रल बैंक ऐसा करते हैं, ठीक है, जैसे इंडिया के केस में RBI सेंट्रल बैंक है तो वो ये मेंटेन करके चलता है। ओके, सो लीगल रिजर्व रेशियो, अब ये दोनों ही RBI के द्वारा डिटरमिन होते हैं, मीन्स CRR की रेट भी और SLR की रेट भी RBI ही फिक्स करता है बैंक्स के लिए, ठीक है। तो दोनों ही लीगल रिजर्व रेशियोज हैं, ठीक है, बट ये दोनों हम यूँ नहीं कह सकते लीगल रिजर्व रेशियो का या LRR का कॉम्पोनेंट्स हैं ये दोनों, individually the CRR and SLR are legal reserve ratios. Both these are legal reserve ratios. They are not the components of legal reserve ratio. Legal reserve ratio एक अलग से रेशियो नहीं है, ठीक है, ये भी अलग लीगल रिजर्व रेशियो है और ये भी अलग लीगल, क्योंकि ये लीगली क्रिएटेड है, ठीक है, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी के द्वारा। ओके, एंड लीगल रिजर्व रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम इन दोनों को मर्ज भी नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर 3.5% अगर हमारा CRR की रेट है, ठीक है, एंड 18.5% अगर SLR है, तो हम 18.5 प्लस 3.5 22%। ओके, हम ये नहीं कहेंगे कि इंडिया में जो लीगल रिजर्व रेशियो है वो 22% है, ठीक है, नो, हम उन दोनों को मर्ज अप नहीं करते, दोनों अलग अलग ही इंडिविजुअली ही लीगल रिजर्व रेशियोज है, कंपोनेंट नहीं है लीगल रिजर्व रेशियो, कहने का मतलब लीगल रिजर्व रेशियो अलग से एंटिटी नहीं है। ओके,